Hello, good afternoon to all of the students of class 12th. Today I welcome you to the next lecture of physics class 12th. Okay, so today's topic which I am gonna teach you is electric field intensity on equatorial line of dipole. Okay, in the previous lecture I have told you that how can we derive the electric field intensity on axial line. So I have taught you what do you mean by axial line. What do you mean by axial line? If you can memorize, please try to remember it. What was it? Anybody? No? Okay, no issue. Axial line is that line which joins the two charges and passes to their center. तो ऐसी लाइन जो दो आपके चार्जेस को ज्वाइन करती है और उनके सेंटर से पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. तो वी हैड कैलकुलेटेड in the previous lecture same electric field intensity on axial line. Now the topic is same but the line is different. Now we're gonna derive this for electric field intensity on equatorial line of dipole. So dipole is same, electric field intensity is same, but we'll derive it for uh, on the equatorial line. So first of all I would like to define you, leave this diagram, I will explain you. First go with equatorial line. So first we should be knowing what do you mean by equatorial line, then only we can derive this. Okay, so first of all I would like to tell you what do you mean by equatorial line. So basically what is equatorial line? Equatorial line is a line perpendicular. Equatorial line is a perpendicular line or a line perpendicular which passes through the center of axial line. Means ये perpendicular line, ऐसी perpendicular line जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन. ओके, तो ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी उसमें नोट्स में. तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटोरियल लाइन? A line perpendicular on axial line and which passes through center of the axial line. तो जो आपका डाइपोल बन जाएगा, जैसे ये डाइपोल है, इसको ज्वाइन कर रहा है एक्सियल लाइन, तो ऐसी लाइन जो इसमें परपेंडिकुलर है और इस डाइपोल के सेंटर से पास हो, उस लाइन को हम, ये वाली लाइन जो है हमारी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, तो अब इसके डेरिवेशन में आते हैं बच्चे. तो इसके डायग्राम मैंने पहले बना दिया टाइम बचाने के लिए, तो मैं इसको रफ में यहाँ पे बनाऊंगा, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसिडरेशन. फर्स्ट कंसिडरेशन विल बी बच्चे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी. तो मैं पहले ए और बी बनाऊंगा. ओके, so now what you will do, you will join these two electric dipole A and B. Then what will be this line called? Axial line. So what will be the total distance of this line? It will be always twice A. And if I consider a point O which is at the center of this dipole, okay, so when a dipole is made, dipole consists of two equal and opposite charges. Means if I say this is minus Q at point A, then which charge will I have to consider at B point? It will be equal to this charge, but polarity should be different. If it is minus Q, then here it will be plus Q. Okay, you got this thing? So then what we have to consider? We have to study about equatorial line. So we will consider a point P, okay, which will be perpendicular on the axial line, which I have drawn here in this diagram. Okay, and this will, what it will do? It will pass through the center of the axial line. So that means it is bisecting this line, axial line. That means if it is twice A, then what will be its half? So OA will be A, twice A का half जो होगा, और वैसे ही OB क्या हो जाएगा? A बन जाएगा. यहाँ तक की डायग्राम है. उसके बाद आपने क्या किया है? हमने इसमें वी हैव रिजॉल्व ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है. एक आपका कॉस बनेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक साइन बनता है, कॉस बनता है. अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे. एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1, दैट विल बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड दूसरा हम निकालेंगे E2, दैट विल बी ड्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज. ओके, तो वो निकालेंगे, उसके फिर आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जोड़ेंगे, तो वो सब चीजें बाद में आएंगी. तो मैं फिलहाल साथ साथ सॉल्व करते जाता हूँ, तो आपको समझ आता जाएगा. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं ये डायग्राम बना दूं, या E1 कॉस थीटा छोड़ दीजिए, सिर्फ ट्रायंगल को देखिए. तो ए बी क्या है? हमारा एक डाइपोल है और उसका सेंटर क्या है? O पॉइंट है. तो उसका ये वाला पार्ट क्या होगा? ये हाफ पार्ट A और ये पार्ट हाफ भी A, और डाइपोल का टोटल लेंथ कितना होता है? ट्वाइस A. यहां तक समझ आ गया आप सबको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और P मैंने पॉइंट कंसीडर किया है. P इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन जा रही है ऊपर से नीचे तक, इसमें एक मैंने पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट, जिसमें मैंने निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी.
तो अब इसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ चीजें कंसिडरेशन करनी पड़ेंगी। तो वो क्या होंगी बच्चे, सबसे पहले मुझे निकालनी है बच्चे वैल्यू कि मेरा एपी किसके बराबर है और मेरा बीपी किसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें एक और बताना मैं भूल गया आपको, तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है, ओपी कह सकते हैं या पीओ कह सकते हैं इसको, वो कितना कंसिडर किया है, स्मॉल आर। वो कितना कंसिडर किया है, ये डायग्राम में मेंशन किया इसमें। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब आपने ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर दोगे कि ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज ट्वाइस है, ठीक है, एंड वी कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन on which we have to calculate electric field intensity, ठीक है। देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन, सबसे पहले किसको करेंगे, ए बी को, ए बी, देन ए पी, एंड लास्ट वाला क्या है हमारा, पीबी, पीबी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हमने निकालना है इसमें ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे एपी। तो एपी क्या होगा बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो अगर मैं ट्रायंगल लूं पी ओ ए, पी ओ ए, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, बोलिए बोलिए शाबाश। तो बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, ए ओ का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या होगा बच्चे, मैं ऊपर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, पी ओ ए, पी ओ ए, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अंदर वाला है, ठीक है। तो इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ओपी का स्क्वायर। समझ आ रही है बात, ये मेरा हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्लियर है बात। तो इनको प्लस कीजिए बच्चे, तो एपी स्क्वायर, एओ कितना है मेरा, ये आर की वैल्यू के बराबर है, तो आर नहीं, एओ तो नीचे वाला है बच्चे, तो ये बन जाएगा, ये ए के बराबर है तो इधर स्क्वायर हो रहा है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ओपी किसके बराबर है हमारा, ओपी आर के बराबर, पर यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ए पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है बात है आपको, ठीक है। और अगर मैं एपी लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये जो 2 है ये इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, 1/2, ठीक है। और सिमिलरली मैं दूसरी चीज निकालना चाहूं, अगर मैं दूसरी चीज निकालना चाहूं तो मैं पीबी निकालूंगा, तो पीबी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, सेम ऐसे ही पीबी की वैल्यू हो जाएगी, पूरा सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, पीबी स्क्वायर पहले निकाल देता हूँ, पीबी स्क्वायर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये आर आएगा, तो पैरामीटर सेम है, तो ये पीबी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पीबी किसके बराबर हो जाएगा, इसका 2 जब इस तरफ जाएगा तो ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, 1/2, ये 2 यहाँ से वहां जाएगा जब दूसरी तरफ तो 1/2 हो जाता है। ये आपकी गिवन कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन लिखने के बाद मैं आगे की कार्रवाई लिखता हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, इफ या इफ रहने दीजिए, इवन बी द इलेक्ट्रिक, लिखिए यहां तक लिखिए जल्दी, शाबाश, यहां तक लिखिए, उसके बाद अगर मैं बताता हूं आपको, लिखिए सबसे पहले, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ इवन से ऐसे लिखिए इसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इलेक्ट्रिक ऑफ E1 ड्यू टू, किसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू ऑन, किस पे हो रहा है, पॉइंट पी पे, ऑन पी, इज गिवन बाय, तो कैसे निकालेंगे इसका दूसरा बच्चे, तो क्या निकलेगा, ये इवन कैसे निकलेगा, लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता ही है आपको। आगे चार्ज, जो चार्ज यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में, अगर यहाँ माइनस क्यू है तो मैग्नीट्यूड में वो प्लस क्यू हो जाएगा, सिर्फ एक चार्ज लिखते हैं, जब कूलम लगाते हैं तब Q1 × Q2 होता है, तब लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स आता है, पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहां पर सिर्फ एक चार्ज आता है, जिस चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पर किस चार्ज की बात हो रही है, माइनस क्यू, पर वो माइनस मैग्नीट्यूड में प्लस बन जाता है, ठीक है। नीचे क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का, माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस है, ए पी, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है बच्चे, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, E1 की आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है एपी स्क्वायर मैंने वैल्यू निकाली थी पीछे, क्या निकाली थी एपी स्क्वायर की वैल्यू बच्चे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाली थी, है ना, ये निकाली थी ना एपी स्क्वायर की वैल्यू, हाँ जी। तो ये मेरे आगे फर्स्ट। सिमिलरली आप निकालेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 बच्चे ये जो यहाँ से जा रहा है बाहर की तरफ, ये E2 यहाँ बनाया हुआ मैंने, तो ये इस लाइन में, तो E2 द मैग्नीट्यूड ऑफ E2 ड्यू टू चार्ज, अब माइनस क्यू की जगह दूसरा चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ऑन पॉइंट, ये भी पी पे लगाएगा फोर्स,
तो P इज गिवन बाई, तो ये E1 की जगह क्या चेंज हो जाएंगे पैरामीटर, कुछ कुछ ही चेंज होंगे, वो मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी सारा का सारा सेम होगा, ठीक है। आपको फोटो भेज दूंगा मैं उसमें। तो यहाँ पर E1 की जगह क्या आएगा, E2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको कि नहीं आई। और यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसको मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। E2 मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर अब डिस्टेंस कितना बनेगा, जैसे यहाँ पर AP था वैसे ही प्लस Q से P तक का डिस्टेंस क्या है, PE से लेके B, तो क्या बन जाएगा PB का होल स्क्वायर। डिड यू गॉट इट, ओके। तो नीचे PB भी किसके बराबर है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या करना है बच्चे, रिजॉल्व E1 एंड E2 into two rectangular components, तो देखिए क्या बनेगा, E1 का क्या बनेगा, E1 sin थीटा एंड E1 cos थीटा, ये फर्स्ट बनेगा। एंड सेकंड क्या बनेगा, E2 के लिए बनेगा सेम, E2 sin थीटा एंड E2 cos थीटा। यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, शाबाश। मैं तब तक थोड़ी सी इंक को कर देता हूँ, जल्दी से कीजिए यहां तक नोट। अब देखिए E1 की डायरेक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 डायरेक्शन ऑफ E1 की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए मैंने एरो बनाई है, P से A की तरफ। E1 की डायरेक्शन क्या है, P से A की तरफ। वैसे E2 की डायरेक्शन क्या है, E2 वेक्टर की, E2 ये रहा, तो ये कहां से है, P से B की तरफ, ठीक है। तो वो डायरेक्शन आपको नोट्स में मिल जाएगा लाइन। अब ये E1 E2 और E2 ये cos थीटा बनाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए E को मैंने तोड़ा, तो यहाँ पर देखिए E2 यहाँ पर है, तो E2 के दो बनेंगे बच्चे, एक E1 cos वाले हमारे हॉरिजॉन्टल में बनेंगे और वर्टिकल में मैंने क्या बनाना है, साइन। तो वर्टिकल में पहले E1 sin थीटा आया जो नीचे की तरफ है, इसी का ही उल्टा E2 जो परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन पे जो है साइन, परपेंडिकुलर मैंने साइन को लेना है, हॉरिजॉन्टल में मैंने कॉस को लेना है। तो मेरे परपेंडिकुलर वाले कितने केसेस हैं, एक ही। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या बनता है, साइन थीटा वाला, तो E1 का साइन थीटा नीचे की तरफ और E2 का साइन थीटा ऊपर की तरफ। सिमिलरली आई विल टेक E for cos theta, E1 cos theta and E2 cos theta, but these two both are towards the left and they both sum up. So E1 sin theta नीचे की तरफ, it's downward, and similarly equal electric force, क्योंकि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली Q है, ना कि कोई एक Q है एक 2Q है तो कोई ज्यादा फोर्स होगा। ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, वन वैल्यू है इनकी। तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। Hence E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite। ये लाइन आपको मिल जाएगी लिखे हुए नोट्स में। तो E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel each other। तो उनका इफेक्ट कैंसल, तो E1 sin theta and E2 sin theta क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल है एंड इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, सो दे कैंसिल, ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट। तो हमें कौन सा वाला केस लेना है, सिर्फ कॉस वाला। तो हम कॉस वाला केस लेके आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ आ गई आई होप आप लोगों को, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब जो हमारा जनरल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बराबर होगा बच्चे, मैग्नीट्यूड फील्ड E जो है वो किसके बराबर होगा, E1 का cos थीटा वाला कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा, E2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म लगा देंगे। यहां तक देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो बताइए। अब आपने क्या करना है, E1 की वैल्यू मैंने पहले निकाली है, फिर E2 की निकाली, पुट। तो पुट द वैल्यू ऑफ E1 मैग्नीट्यूड में मैंने पहले निकाला है एंड E2 को भी मैग्नीट्यूड में निकाला है, तो उनकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करूंगा। तो ये E लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब डालिए पहले इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड में माइनस Q था पर हमने Q लिया था, और नीचे क्या था AP स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वाले का भी सेम है, E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के साथ क्या है, यहाँ पे भी कॉस लगा है, यहाँ पे भी कॉस लगा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कॉस थीटा, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे कॉस थीटा। अब देखिए ये 4 पाई और Q कॉस थीटा इधर भी कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये R स्क्वायर इधर भी कॉमन है ना। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा है। तो इन दोनों को जब मैं सम अप करूं,
ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, तो ये ट्वाइस लिख सकता हूँ ना, तो ये ट्वाइस बन जाएगी। जैसे 1 + 1 कितना होता है ट्वाइस, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। तो क्या लिखूंगा, ट्वाइस 1/4πε0 क्यू, आगे क्या है हमारे पास नीचे r² + a² और मल्टीप्लाई में क्या है cos थीटा। अब मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए बच्चे, तो cos थीटा की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो हम लेंगे सबसे पहले इसी ट्रायंगल को ले लीजिए, cos इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP। तो निकालिए बच्चे, cos क्या होता है, cos थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये होता है आपका cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है AOP में AO, तो क्या बन जाएगा cos थीटा AO अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AP, AP। तो AO किसके बराबर है आपका, AO आपका बेस है, AO आपका क्या है बेस, बेस की वैल्यू क्या है आपकी A, और आपकी हाइपोटेन्यूज AP² निकाला था हमने, AP² हमारा किसके बराबर था, AP² r² + a² प्लस यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर AP है सिर्फ, तो ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो r² + a² किसके बराबर बन जाएगा, ये वाला 2 वहां जाएगा तो 1/2 फॉर्म बन जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया, तो ये बन जाएगा a/r² + a² की पावर 1/2। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, जैसे इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन डाल दीजिए, तो पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। तो cos की वैल्यू डायरेक्टली डालिए, तो क्या बनेगा, ई वेक्टर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इंटू 1/4πε0 भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ये क्यू भी ऐसे का ऐसे रहेगा, r² + a² भी ऐसे का ऐसे रहेगा, इंटू क्या है यहाँ पर हमारा ये a है, क्या है ये a है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a अपॉन r² + a² की पावर 1/2। तो इसकी बेस सेम पावर क्या एडेड, इसकी इस वाले ब्रैकेट की पावर क्या है नहीं लिखा है, मतलब ब्रैकेट में पावर क्या है 1, तो 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2। तो ये दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा बेस को 3/2। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिखूंगा, ठीक है, ताकि क्लियरली दिख सके सबको। आई होप कि मैं फास्ट नहीं जा रहा, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए और लेवल बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर इस चीज को कीजिए, तो क्या बनेगा, ई आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, इंटू 1/4πε0 भी ऐसे कैसे रहेगा। अब ये q इंटू ट्वाइस है, q इंटू a अपॉन इसकी पावर 1, इसकी बेसिस आर सेम, दोनों बेसिस सेम है, पावर इनकी ऐड होती है, तो 1 + 1/2 3/2। तो इसको 2 बार की जगह एक बार ही लिखेंगे हम 3/2 करके। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है, मैं बताया डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, q इंटू ट्वाइस है, यहाँ पर देखिए ट्वाइस भी है q भी है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको लिखने से पहले मैं लिखता हूँ हेयर, एक कंसीडर करना है हेयर कि r की वैल्यू a से बहुत 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 बड़ी है, हेयर r इज ग्रेटर देन वैल्यू a, देन उस टाइम पे r² + a² अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाता है, r² के बराबर। तो a की वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू जो r की वैल्यू है, तो एक कंसीडर करना है हमें ड्राइव करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, e ऐसे का ऐसे ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू 1/4πε0, और नीचे ऊपर यही रहेगा q इंटू a अपॉन नीचे क्या आ जाएगा r² + a² किसके बराबर है, खाली r² के बराबर, तो r² की पावर 3/2। तो ये 2 और अंदर वाला 2 कट गया, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, q इंटू ट्वाइस है, तो q अलग से लिखूंगा मैं, 1/4πε0 कॉमन बाहर लिख दूंगा पहले ही, q अलग से लिखूंगा, साथ में ट्वाइस है एक साथ लिखूंगा, और नीचे ये r² कट गया, तो r की पावर क्या बचा 3 बचा, ये किसके बराबर है, e के बराबर है। और लास्ट में इसको स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको किसके बराबर, तो देखिए यहाँ पर आराम से, तो यहाँ पर E किसके बराबर आ गया बच्चे, वी नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, Q इंटू ट्वाइस a के बराबर। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर आ गया, ये तो खत्म हो गया सारा का सारा P के बराबर, तो 1/4πε0, और साथ में क्या आएगा इधर मैग्नीट्यूड में हमारा P वेक्टर, और नीचे क्या आएगा r की पावर 3। तो ये आपका रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इसे क्या सीखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन में r के साथ, इस डिस्टेंस के साथ r के साथ कैसे वेरी करती है, 1/1। अगर ये मैं सारा वैल्यू कांस्टेंट ले लूं तो ये r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ r। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन था। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, एक्सल लाइन जैसे ही है, इसको नोट कर लीजिएगा, फोटो में भेज दूंगा। थैंक यू।